Hello friends, I am Dr. Jigar Agarwal, Associate Professor and Head of the Department for the subjects of Accountancy, Law and Taxation at JG College of Commerce. Today I want to discuss a very important but very easy topic, and the name of the topic is Valuation of Goodwill for the SY BCom students semester 3. Before we get down to solving the example, let us go through the basic important points associated with valuation of goodwill. अगर ये बेसिक नोट्स, ये बेसिक पॉइंट्स आप अच्छी तरह से समझ जाते हो तो आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको सारे सब सही कर देगा. So hopefully I hope that you will pay attention and absorb all these points that I'm about to discuss. There are basically 5 steps involved in the valuation of goodwill. Namely, step number 1, you have to find out capital employed, that is equal to assets minus liabilities, and of course you have to deduct preference share capital in the end. So step number 1 is capital employed, assets minus liabilities minus preference share capital. Step number 2, you want to find out the expected profit. आपका प्रॉफिट क्या एक्सपेक्टेड है? अगर आपने बिजनेस में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट की है तो उसमें से व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू एक्सपेक्ट. So that is what you find out. And how do you find it out? Capital employed into expected rate of return, as you can see on the screen. Step number 3, average profit you have to find out. Fourth step is super profit. Super profit is equal to average profit minus expected profit. And step number 5 is goodwill. And here in this step, at this step, you will get the answer. So goodwill is equal to super profit into number of years, right? Now let us understand all these points in detail, all the steps in detail. For example, step number 1, capital employed. So which I just mentioned, the formula is assets minus liabilities minus preference share capital. Now these are the points you need to keep in mind while compiling the list of assets. कौन सी assets आप ध्यान में लोगे तो उसके लिए ये जरूरी पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले assets आप जो ध्यान में लोगे वो है फिक्स assets, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एटसेट्रा. इनकी वैल्यू आप जब भी ध्यान में लो तो कौन सी वैल्यू लोगे आप? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन फंड. तो हमेशा वॉच आउट फॉर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट. अगर नीचे आपको दिए है एडजस्टमेंट में मार्केट वैल्यू दी है तो यू विल ऑफ कोर्स टेक द मार्केट वैल्यू. तो फिर आप कॉस्ट और डेप्री फंड दोनों को इग्नोर करेंगे, राइट? दूसरी जो असेट्स आपको लेनी है, ओनली ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स. नाउ व्हाट आर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स? तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स हैं व्हिच आर नेसेसरी टू कैरी ऑन द बिजनेस. जो बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए, बिजनेस को प्रॉस्पर करने के लिए, बिजनेस का एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही जरूरी इन्वेस्टमेंट्स हैं. तो वहां पे मैं आपको एग्जांपल दिया है. देयर आर 4 ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स. व्हाट आर दोस? नंबर 1 इज शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी. अगर ये बैलेंस शीट में है तो आप इनको इंक्लूड करोगे असेट्स में. फिर है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स. थर्ड इज डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स. एंड फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड, और समटाइम्स इट इज आल्सो मेंशन्ड एज सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स. तो अगर ये 4 इन्वेस्टमेंट्स हैं बैलेंस शीट में तो ये 4 आप अपनी असेट्स में इंक्लूड करोगे. इनके अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या XYZ लिमिटेड डिबेंचर्स या कोई XYZ कंपनी के इक्विटी शेयर्स, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेडिंग है, मतलब विच आर नॉट नेसेसरी टू कैरी ऑन द बिजनेस. तो ये सारे जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स है वो आप ध्यान में नहीं लोगे, ठीक है? तो व्हाट आर द ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स? ये 4 which are mentioned on in the list which you can see on the screen. And all the investments other than these 4 investments are non-trading investments. उनको आप ध्यान में नहीं लोगे. फिर you will also include current assets. What are the current assets? For example, cash balance, bank balance, stock, debtors. But debtors after deducting both bad debts and bad debt reserve, दोनों. Prepaid expenses, ये सारी चीजें आप assets में include करोगे. अच्छा, assets में क्या क्या ध्यान में नहीं लोगे ये भी तो जरा देख लेते हैं. तो asset में सबसे पहले इंटेंजिबल असेट में गुडविल आप ध्यान में नहीं लोगे, क्योंकि गुडविल तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना. वी आर अबाउट टू कैलकुलेट न्यू गुडविल. सो ओल्ड गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट विल बी इग्नोर्ड कंप्लीटली. फिर जैसे अभी मैंने बोला नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स अदर देन ट्रेडिंग, वो भी मैंने बताया. सो दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर नॉट ऑफ ट्रेडिंग नेचर विल नॉट बी इंक्लूडेड इन असेट्स, राइट? अगर आपको नहीं बताया कि सम में आपको बताया नहीं कि कौन से टाइप का इन्वेस्टमेंट है, सपोज इफ द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेंशन्ड इन द सम, तो अज्यूम कि वो नॉन ट्रेडिंग नेचर का है और उसको असेट्स में इंक्लूड मत करना. फिर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट बैलेंस भी आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे, राइट? एंड देन इन द एंड देयर आर 4 फिक्टिशियस असेट्स व्हिच मे और मे नॉट बी देयर इन द बैलेंस शीट, लेकिन आपकी बैलेंस शीट में है तो आप इसको इग्नोर करोगे, आप उसको असेट्स में इंक्लूड नहीं करोगे. व्हाट आर दोस फिक्टिशियस असेट्स? नंबर 1 इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर अकाउंट,
नंबर 2 इज डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट, फिर अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. दिस फोर आर fictitious assets and they are not to be included in assets. Clear? Let us move further. We have dealt with the asset side. Now let us deal with the liability side. क्या क्या liabilities में क्या क्या आएगा? तो liabilities will include all the types of loans, secured loans, unsecured loans, short-term loans, long-term loans, debentures, and all the other types of borrowings. All these things will be included in liabilities. It will also include current liabilities. कौन सी है current liabilities? For example, bank overdraft, आउटस्टैंडिंग या अनपेड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सारी चीजें आपकी लायबिलिटीज में इंक्लूड हो जाएगी. फिर याद रखना जरा कि वर्कमेंस प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन या इट इज अ लायबिलिटी, बट वर्कमेंस एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड इज नॉट अ लायबिलिटी, इट्स अ रिजर्व. So workmen's accident compensation fund will not be included in liabilities, but workmen's profit sharing fund is a liability and will be included in liabilities to be ultimately deducted from assets. ठीक है. लास्ट में एक और चीज कि proposed preference dividend will be treated as a liability, but proposed equity dividend is not a liability. These are very comprehensive points. अगर ये points आप ध्यान में रखते हो तो मुझे लगता है कि आपके सम कभी गलत होने का कोई चांस ही नहीं है. ठीक है. अच्छा, लायबिलिटीज में क्या क्या नहीं आएगा वो भी देख लेते हैं इसके साथ. तो लायबिलिटीज में क्या क्या नहीं आएगा? तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कोर्स इज नॉट अ लायबिलिटी. ठीक है, दैट इज द ओनर्स, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, इट्स नॉट अ लायबिलिटी. फिर उसमें और क्या नहीं आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लायबिलिटीज में नहीं आएगा, जैसे कि जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट यानी प्रॉफिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, ये सारी चीजें लायबिलिटीज में नहीं आएंगी. Alright, and in the end, do not forget to deduct preference share capital from assets. Right? ये जो हमने ऊपर देखा ना, जो फॉर्मूला में देखा ना, ये स्टेप नंबर 1 में कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, उसमें आपने देखा ना असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो इट इज जस्ट अ रिमाइंडर that you should not forget deducting preference share capital from the assets. All right, and so that's how you will obtain your capital employed, assets minus liabilities minus preference share capital, which you can see. Now let us move further to step number 2. Step number 2 is damn easy. Expected profit is equal to capital employed into expected rate of return, जिसको बोलते हैं ERR. ठीक है, इसको briefly आप कह सकते हो, that is what it is known as ERR. All right, expected profit is equal to CE into ERR. आप briefly ऐसे भी याद रख सकते हो. ठीक है, CE into ERR. ठीक है, नॉर्मली आपको ERR आपको एग्जांपल में दे ही देते हैं, इट इज ऑलवेज गिवन इन द एग्जांपल. लेकिन अगर कहीं पे आपको दिया है फॉर एग्जांपल कि कंपनी का रेट ऑफ डिविडेंड है 20% और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू से 2 टाइम्स है, तो यू मे हैव टू एडजस्ट फ्रॉम दिस रेट ऑफ डिविडेंड, यू हैव टू ऑब्टेन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो 20% डिवाइड बाय 2 टाइम्स, तो यहाँ पे ERR कितना हो जाएगा? 10%. ठीक है, बट नॉर्मल इट इज गिवन इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर. आपको बता ही देते हैं कि कंपनी का द काइंड ऑफ बिजनेस द कंपनी इज एंगेज्ड इन, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, 20%, 15%, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में दे ही देते हैं. तो आपको सीधे वहां से लेके मल्टीप्लाई करना है किससे? कैपिटल एम्प्लॉयड से. अभी हमने फाइंड किया ना कैपिटल एम्प्लॉयड, उससे आपको ये रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और आपको मिल जाएगा EP यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. Let's go further down. Step number 3, average profit. आप जानते हो कि अगर प्रॉफिट्स फ्लक्चुएटिंग होते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, तो आप कौन सी मेथड यूज करोगे? सिंपल एवरेज. बट इफ प्रॉफिट्स आर शोइंग अ पर्टिकुलर ट्रेंड, ईदर एन अपवर्ड ट्रेंड और अ डाउनवर्ड ट्रेंड, इफ दे आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली और डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो इन दैट केस you will have to use weighted average profit. Otherwise, of course, if profits are fluctuating, you will opt for simple average. लेकिन याद रहे कि ये जो प्रॉफिट मिला उसमें से ये जो एनटीपी है वो माइनस करना मत भूलना, बहुत जरूरी है. एनटीपी यानी क्या? ये मैंने बनाया हुआ है, दैट इज हाउ आई हैव, ये एक्रोनिम मैंने बनाया हुआ है. एनटीपी मींस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आती है वो पहले लेस करोगे, उसके बाद टी फॉर टैक्सेस, एंड फाइनली यू हैव टू डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड. तो बैलेंस शीट में आपको देते हैं ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उससे यू कैन ऑब्टेन प्रेफरेंस डिविडेंड और वो यहाँ पे लेस करना है. तो बेसिकली क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट सिंपल हुआ, योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसमें से 3 चीजें एनटीपी माइनस करनी है, नॉन ट्रेडिंग इनकम, टैक्सेस एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ये 3 चीजें आपको माइनस करनी है. नाउ लेट अस फर्दर सी स्टेप नंबर 4, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस ईपी. आप ऐसे याद रखोगे ना, बहुत जल्दी याद रह जाएगा.
एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ऑलराइट, तो एवरेज प्रॉफिट अभी ऊपर मिला ना हमें, यहां दिस इज योर एपी एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, और उसके ऊपर हमें क्या मिला, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो ये ईपी और ये एपी, ये दोनों का डिफरेंस यहां पे, लेकिन डिफरेंस कैसा याद रखना, एपी माइनस ईपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। नॉर्मली यहां पे डिफरेंस पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो आपकी गुडविल जीरो है। सुपर प्रॉफिट यानी द कंपनीज कैपेसिटी टू अर्न सुपर प्रॉफिट, बम्पर प्रॉफिट, मोर देन द एवरेज प्रॉफिट दैट पीपल ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री अर्न। अगर आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, मतलब नेगेटिव प्रॉफिट आ रहा है आपका, एक्चुअल प्रॉफिट इज लेस देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो आपकी गुडविल यहाँ पे नील हो जाएगी। बट नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स यहाँ पे जो सुपर प्रॉफिट है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। लास्ट स्टेप यहाँ पे है, यू हैव टू फाइंड आउट गुडविल कैसे मिलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस आपको दे देंगे, 4 साल की परचेस, 5 साल की परचेस, 6 साल की परचेस आपको दे देंगे, तो आपको दैट विल गेट यू गुडविल। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको नंबर ऑफ ईयर्स ही दे, कभी कभी सम में लिखते हैं ट्वाइस थ्राइस, टाइम्स लिखते हैं 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स या ट्वाइस थ्राइस, तो अकॉर्डिंगली यू विल एडजस्ट द मल्टीप्लायर एंड यू विल गेट द गुडविल। इज दैट क्लियर नाउ फ्रेंड्स? सो अभी हमने बहुत सारे गुडविल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, चलो उसको अप्लाई करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं सुधीर प्रकाशन की बुक में से, पेज नंबर 80, एग्जांपल नंबर 20, राकेश लिमिटेड। कितने बार पूछा है देखो यूनिवर्सिटी में, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। तो लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल, पहले उसकी एनालिसिस कर देते हैं, बाद में उसके जो स्टेप्स अप्लाई करने हैं वही स्टेप्स अप्लाई करने हैं आपको। 5 स्टेप्स कौन से? स्टेप नंबर 1 इज कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to assets minus liabilities. Step number 2, you have to find out expected profit is equal to capital employed into ERR, that is expected rate of return. Step number 3, you have to find out average profit, जो भी हो सिंपल या weighted average profit, लेकिन 3 चीजें माइनस करना नहीं भूलना है। कौन सी 3 चीजें हैं वो, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। स्टेप नंबर 4 क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस ईपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एंड लास्ट स्टेप इज गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम्स, आपको जो भी दिया है उसके हिसाब से आप मल्टीप्लायर एडजस्ट करके आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलो उसी को ध्यान में रखते हुए लेट अस एनालाइज द एग्जांपल। क्या है आपके एग्जांपल में, स्टार्टिंग विद इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, आपके पास है इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज नॉट अ लायबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है आपकी यहाँ पे वो लायबिलिटी नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है दैट इज योर, वो हम अल्टीमेटली एंड में लेस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है दैट इज अ रिजर्व, इट इज अ सरप्लस, तो वो ध्यान में नहीं लेंगे। जनरल रिजर्व इज अ रिजर्व, इट इज नॉट अ लायबिलिटी, वो लेस नहीं करेंगे। प्रूडेंट फंड इज अ लायबिलिटी, वो हम लेस करेंगे। एंड अदर लायबिलिटीज ऑफ कोर्स आर लायबिलिटी, सो वी विल डिडक्ट इट एज अ लायबिलिटी। नाउ लेट्स मूव टू दी, है बहुत छोटी बैलेंस शीट। तो कौन सी एसेट्स हैं आपके पास, टेंजिबल एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स होंगी, और इनटेंजिबल एसेट्स मोस्टली गुडविल, लेकिन आप जानते हो कि पुरानी गुडविल हम ध्यान में नहीं लेते, वी इग्नोर द ओल्ड गुडविल, तो पुरानी गुडविल हम यहाँ पे ध्यान में नहीं लेंगे। और करंट एसेट्स ये भी हम ध्यान में लेंगे, सो ये दोनों एसेट्स ध्यान में लेंगे, टेंजिबल एसेट्स एंड करंट एसेट्स। डन। नाउ लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट्स। क्या है आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन, द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स इज एस्certained at rupees 8,25,000 and 2,75,000, मतलब कि आपको फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स की वैल्यू आपको दे दी है, मतलब उसकी दोनों ही बुक वैल्यू को इग्नोर करोगे एंड यू विल स्ट्रेट अवे चूज देयर मार्केट वैल्यूज, उनको आप इंक्लूड करोगे एसेट्स में। द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस एंड गिविंग डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स पेड अप वैल्यू। तो ये जो 2 टाइम्स लिखा है ना, उसके कारण क्या होगा कि ये जो डिविडेंड का रेट है ना उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। So 20% divided by 2 times. So what is your normal rate of return? That in other words is nothing but expected rate of return. So 20% divided by 2 times, 10% will be your expected rate of return. आगे देखते हैं, आपको प्रॉफिट्स दिए हैं पिछले 3 साल के इंक्लूडिंग द बैलेंस शीट ईयर। व्हाट इज द बैलेंस शीट ईयर? 1920 है, बैलेंस शीट ईयर इज 2019-20 और इसका प्रॉफिट आपको यहाँ पे दे दिया। सो पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिया है। And there are 4 adjustments on profit. You can see that. Scrutiny of profits reveals the following. उसमें क्या क्या है? To cover management cost, provision of 2,000 should be made. तो ये देखना होगा, उसकी इफेक्ट देनी पड़ेगी। फिर profit of 2017-18 has been reduced by 5,000 due to stock destroyed by fire.
ये एबनॉर्मल लॉस है, वो भी एक बार हमें उसकी भी इफेक्ट देनी पड़ेगी। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस इज ओवर वैल्यूड बाय 2000, उसकी इफेक्ट देनी पड़ेगी। एंड लास्ट इज द इट हैज इफेक्ट ऑन 2000 मिडल ईयर प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है उसकी इंपैक्ट, उस पर इंपैक्ट होगी डी एडजस्टमेंट की। तो वो जब स्टेप नंबर 3 जब आएगा एवरेज प्रॉफिट, उस वक्त टेबल बना के ये सारे एडजस्टमेंट की इफेक्ट हम देखेंगे। तो आगे लिखा गया बेसिकली फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द 3 इयर्स परचेज ऑफ इट्स सुपर प्रॉफिट। आपको यहाँ पे मल्टीप्लायर में लेना है 3 इयर्स कैलकुलेटेड ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। यहाँ पे आपको वेप यूज करना है, वो तो बता ही दिया है। चलो तो लेट अस सॉल्व द एग्जांपल। सबसे पहले तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, आप जानते हो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो चलो वही करते हैं। लेट अस मूव टू दैट स्टेप। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो क्या है फॉर्मूला, असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हमें तो लिस्ट बनानी पड़ेगी असेट्स की, लेकिन असेट्स की लंबी चौड़ी लिस्ट है ही नहीं, क्योंकि असेट्स की वैल्यू सिर्फ दो ही वैल्यू है, आपको दे दी है। फिक्स असेट्स 8,25,000 एंड करंट असेट्स 2,75,000। तो चलो असेट्स में उसको इंक्लूड कर दो। यहाँ पे आएगा असेट्स में फिक्स्ड असेट्स 8,25,000, ऑलराइट, और कितनी आपके करंट एसेट्स कितनी है 2,75,000। करंट एसेट्स 2,75,000, बस और कोई एसेट्स बचती नहीं है बैलेंस शीट में, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स लेनी नहीं है, और टेंजिबल एसेट यानी फिक्स एसेट्स आ गई और करंट एसेट्स उसमें आ गई, बस दैट इज ऑल वी हैव इन असेट्स। तो टोटल कर दो, यहाँ पे असेट्स का टोटल आएगा 11 lakhs, आपकी टोटल की असेट्स की टोटल आया 11 lakhs। नाउ लेट्स मूव टू द लायबिलिटीज साइड, उसमें भी ज्यादा नहीं है। लायबिलिटीज में आपके पास सिर्फ दो ही है चीजें, प्रोविडेंट फंड एंड अदर लायबिलिटीज, और एंड में हम लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो 3090 पीएफ एंड अदर लायबिलिटीज, तो वही है, सिर्फ दो चीजें। तो लायबिलिटीज में यहाँ पे लिख देते हैं प्रोविडेंट फंड, provident fund, what is the amount of provident fund, 30,000, or other liabilities, they should also be included, other liabilities 90,000, और कोई लायबिलिटीज है ही नहीं, तो इसका टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो लेनी है वो लायबिलिटीज है 1,20,000, करेक्ट। तो अब आपको मिल जाएगा असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो असेट्स कितनी है आपकी, अभी आपने देखा असेट्स 11 lakhs, और आपकी लायबिलिटीज है 1,20,000, माइनस लायबिलिटीज कितनी है 1,20,000, तो उसको लेस कर देंगे यहाँ पे, लायबिलिटीज 1,20,000 एंड माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, विच अगेन यू कैन सी, फॉर दैट यू हैव टू लुक इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 lakhs, वो लेस हो जाएगा यहाँ पे, सो 2 lakhs। सो आपको मिल जाएगा व्हाट इज योर 11 lakhs minus 1,20,000 being liabilities and 2 lakhs for preference share capital. So यहाँ पे आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी 7,80,000। दिस इज योर आंसर टू स्टेप नंबर 1। कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में टोटल कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड है 7,80,000, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड स्टेप, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। Expected profit. How do you find out expected profit? Capital employed into ERR. So what is your capital employed? अभी आपने निकाला 7,80,000 into what is your ERR? 10%. कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना, अभी हमने देखा था the market price of the shares of the company doing similar business and giving a dividend at the rate of 20% is 2 times of its paid up value.
यानी अगर नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया है तो उसका मार्केट प्राइस है 20 रुपया, ठीक है। तो ये जो 20% है दैट ऑल्सो इज इन कॉन्सोनेंस विथ योर मार्केट प्राइस। तो ये जो 20% है इसको अगर 2 टाइम्स से डिवाइड किया जाए तो यू विल गेट योर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या इन अदर वर्ड्स expected rate of return. So 20% divided by 2 times, 2 not percent but 2 times. तो इसको अगर डिवाइड करते हो 2 टाइम्स से तो you will get 10% and that is your ERR. So what will be your expected profit? Rupees 78,000. This is your expected profit. All right. So हो गया step number 1 and 2. Now let's move to the एवरेज प्रॉफिट। जैसे मैंने बोला था कि ये पूरे सम जो है द एंटायर सम उसका एम्फेसिस एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपको 3 साल के प्रॉफिट दे दिए हैं। व्हाट आर द 3 प्रॉफिट्स, इन पर एडजस्टमेंट है वही हमें समझना है। तो व्हाट आर द प्रॉफिट्स 125, 132 एंड 153,800। तो ये प्रॉफिट को ये टेबल में मैं कॉपी कर रहा हूं स्टेप नंबर 3 में। यहाँ पे व्हाट आर द प्रॉफिट्स गिवन, ठीक है। जो आपको प्रॉफिट दिए हैं वो है पहले साल में 1,25,000, मिडिल ईयर में है 1,32,000 और थर्ड ईयर में है 1,53,800। These are the 3 years प्रॉफिट फिगर्स, करेक्ट। और इस पर हमें देखना क्या है, एडजस्टमेंट देखना है, ठीक है। तो लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स। ये रहा पहला एडजस्टमेंट नंबर 8, क्या है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट प्रोविजन ऑफ 2,000 शुड बी मेड। मतलब कि अगर मैनेजमेंट यानी बेसिकली द कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस या मैनेजमेंट कॉस्ट, तो उसकी प्रोविजन कितनी कर रही है 2,000। तो इससे क्या होगा, व्हेनेवर एनी एक्सपेंस इंक्रीजेस योर प्रॉफिट डिक्लाइंस। तो यहाँ पे 3 साल के जो आपके प्रॉफिट है वो तीनों साल के प्रॉफिट में से ये जो 2,000 की मैनेजमेंट की कॉस्ट है वो हमें माइनस करनी होगी। We have to reduce the profit by the amount of 2,000 for all the 3 years. तो यहाँ पे मैं लेस करता हूँ, I will deduct, सबसे पहले यहाँ पे आएगा मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट, और तीनों साल के प्रॉफिट में से 2,000 लेस हो जाएगा, बिकॉज एन प्रोविजन यू आर मेकिंग अ प्रोविजन फॉर एन एक्सपेंस एंड व्हेनेवर यू प्रोवाइड फॉर एन एक्सपेंस it brings down your profit. तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। That's how you have to give the effect of the first adjustment. अच्छा, बी में क्या है, प्रॉफिट ऑफ 2017-18 यानी पहले साल का प्रॉफिट, it has been reduced by 5,000 due to stock destroyed by fire. That means it is abnormal loss. In other words, इसको क्या बोलेंगे, abnormal loss। यानी पहले साल में 5,000 का abnormal loss हुआ था। तो एक बात ध्यान में रखना कि in case when we are calculating goodwill, you have to ignore all the abnormal gains or abnormal losses, क्योंकि it does not reflect your goodwill, right? Either way, अगर abnormal gain है तो that will unjustifiably inflate your goodwill, and if there has been abnormal loss, it will unjustifiably bring down your profit. तो इसको करेक्ट करने के क्या करना पड़ेगा कि आपने जो भी इफेक्ट दी उसकी रिवर्स इफेक्ट देनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो आपने अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस माइनस किया हुआ है तो उसको ऐड बैक करके ऑब्टेन द नॉर्मल प्रॉफिट। इन शॉर्ट, while calculating goodwill, if there is any abnormal loss, the same should be added back to the profit, and if there is any abnormal gain and if it has been added to the profit, then the same should be added back to the profit. अगर abnormal gain है इंक्लूड किया है तो माइनस करो, और अगर abnormal loss है और आपने माइनस किया है तो उसको ऐड बैक कर दो, ठीक है। तो हम भी यहीं पे करेंगे, we will add back abnormal loss due to fire, abnormal loss due to fire, abnormal loss due to fire। पहले साल में है ना, तो मैं यहाँ पे उसको ऐड बैक कर दूंगा क्योंकि आपने उसको लेस किया है। आपका प्रॉफिट जो है आपने अनजस्टिफाइबली लेस किया है, वो आपकी गुडविल को रिफ्लेक्ट नहीं करता। सो एबनॉर्मल लॉस शुड बी एडेड बैक टू द प्रॉफिट टू एक्चुअली ऑब्टेन द रियल वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। तो मैंने इसको ऐड कर दिया, दूसरे 2 साल में कोई इफेक्ट नहीं होगी तो मैंने डैश कर दिया। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड एडजस्टमेंट, सी, नंबर नहीं है, सी। The closing stock of 2017-18 is overvalued by 2,000.
जो क्लोजिंग स्टॉक है 17-18 का, उसकी वैल्यू आपने 2000 ज्यादा कर दी है क्लोजिंग स्टॉक। नाउ फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर आपने क्रेडिट साइड बढ़ाई है तो व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज योर प्रॉफिट अनरीजनेबली, रॉन्गली, ठीक है। तो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बताया तो आपका प्रॉफिट अनरीजनेबली बढ़ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो साल में से क्लोजिंग स्टॉक का जो ओवर वैल्यूएशन है वो माइनस करना पड़ेगा, एंड द सेम क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर एज एन ओपनिंग स्टॉक इन द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे उसकी इफेक्ट देता हूं नंबर 3 पे, स्टॉक स्टॉक। और क्या किया था 17-18 में, आपने क्लोजिंग स्टॉक 2000 ज्यादा बता दिया था, है ना, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बता दिया था, यानी आपने क्रेडिट साइड को इन्फ्लेक्ट कर दिया था, यू हैड इन्फ्लेटेड द क्रेडिट साइड। तो आपको यहाँ पे उसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिडक्ट 2000 फ्रॉम दैट ईयर्स प्रॉफिट, क्योंकि वो इट वाज योर क्लोजिंग स्टॉक इन दैट ईयर, ठीक है। तो इट वाज योर क्लोजिंग स्टॉक, ऑलराइट। और नेक्स्ट ईयर द सेम क्लोजिंग स्टॉक वुड अपीयर एज द ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, वही क्लोजिंग स्टॉक अपीयर हो जाएगा एज एन ओपनिंग स्टॉक। तो नेक्स्ट ईयर उसकी इफेक्ट कौन सी हो जाएगी, रिवर्स इफेक्ट होगी। तो यहां पे प्लस कर देंगे, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड एंड यू इन्फ्लेटेड द डेबिट साइड। तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या पड़ेगा, बैलेंस आउट करने के लिए करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करो यानी प्लस करो। तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, इसलिए उसकी इफेक्ट उल्टी हो गई, बिकॉज इन द सब्सिक्वेंट ईयर it appeared as the opening stock and that's why it was added back to the year's profit. It does not affect the last year. I hope you got the last point. Closing stock overvalue किया, minus किया, and the same thing will appear as the opening stock next year, तो मैंने plus कर दिया, ठीक है। All right, now let us move to the adjustments. और कौन सा adjustment है भाई, D. Look at the adjustment D. On 1st October 2018, यानी अक्टूबर यानी कौन सा साल, मिडल ईयर, अक्टूबर यानी 2018-19 मिडल ईयर, क्या किया आपने, a major repair of 10,000 resulting in improvement of plant has been charged to revenue। revenue यानी आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया। ये जो 10,000 का जो मेजर इंप्रूवमेंट इन प्लांट है, आपने क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया। एक्चुअली इट शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसमें लिखा भी है द सेड सम इज टू बी एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब कि इट शुड बी एडेड टू प्लांट, it should not be recorded as an expenditure and charged to profit and loss account. It should be rather taken as a expenditure on asset calibration. आपने अपनी asset को calibrate किया, तो 10,000 should be added to plant, not debited to profit and loss account. So आपने क्या किया, गलती से 10,000 was wrongly debited to profit and loss, लिखा है ना, charge to revenue, revenue यानी profit and loss, तो आपने गलती से 10,000 profit and loss में डेबिट कर दिया। तो आपको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, What you have to do to correct it? You have to edit back, उसको वापस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वही कर देता हूं, मिडल ईयर में है, तो लेट्स गो बैक टू द प्रॉफिट्स। यहां पे फोर्थ आएगा रिपेयर्स ऑन प्लांट। और क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और आपने उसको रॉन्गली प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू एडिट बैक। इट विल बी कैपिटलाइज्ड एंड इट शुड नॉट बी चार्ज टू द रेवेन्यू। उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं करना था, आपको उसको यू शुड हैव ट्रीटेड इट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो उसको प्लांट में ऐड करना था, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं करना था। तो मुझे सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करो यानी प्लस करो। तो मैंने यहाँ पे उसको 10,000 प्लस कर दिया, क्लियर। नाउ इफ इट इज कैपिटलाइज्ड देन यू आल्सो हैव टू डेप्रिशिएट इट। अगर ये प्लांट बन गया तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन भी होगा, और उसमें डेप्रिसिएशन है ही, कितना डेप्रिसिएशन है, 20% पर एनम एज पर आरबीएम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो यू विल हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम एज पर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लेकिन ये प्लांट हमने कब रिपेयर कौन से तारीख को किया था, वी कैरिड आउट द रिपेयर्स ऑन 1st October 2018, 1st October 2018, यानी 2018 का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये प्लांट पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा पहले साल में,
यहाँ पे 6 महीने का होगा, और उसके बाद डेप्री लेस करने के बाद जो नेट वैल्यू आती है, रिड्यूस बैलेंस आता है, उस पर नेक्स्ट ईयर में फुल 12 मंथ्स का डेप्री होगा। डन। तो चलो यहाँ पे एक और चीज लेस करनी पड़ेगी नंबर 5 पर, वो है डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट। यू विल हैव टू डिडक्ट डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है सेपरेट, लेकिन ऑफ कोर्स द प्लांट हैज टू बी डेप्रिशिएटेड, सो यहां पे आएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। पहले साल में तो है ही नहीं, 2018 में आपने रिपेयर्स कैरी आउट किए ना, यू कैरिड आउट द रिपेयर्स इन 2018 अक्टूबर, तो 10,000 पर एट द रेट ऑफ 20% फॉर 6 months, फॉर 6 months, ठीक है, 10,000 पर 20% और 6 months, so आपका कितना आएगा 10,000 20% फॉर द होल ईयर इट विल बी 2,000, फॉर हाफ ईयर इट विल बी 1,000। तो यहां पे आपको जो डेप्री माइनस करना है वो है 1,000। द डेप्री दैट यू आर सपोज टू डिडक्ट इज 1,000, राइट। 10,000 के प्लांट पर 20% और आधे साल का डेप्रिसिएशन, राइट। और नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, इट विल बी इसकी वैल्यू आप रिड्यूस कर दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर जो आप डेप्रिसिएशन गिनोगे वो 10,000 माइनस प्रीवियस ईयर का डेप्री 1,000 लेस करने के बाद नेट वैल्यू कितनी आती है 9,000। व्हाट इज द नेट वैल्यू 9,000, और इस पर आपको कैलकुलेट करना है 20% डेप्री फॉर द होल ईयर। इस पर आपको कैलकुलेट करना है 20% फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, ठीक है। 9,000 20% 1 ईयर, तो कितना होगा आपका डेप्री, कितना होगा 1,800, राइट। 9,000 इंटू 20% कितना होगा डेप्री आपका 1,800, तो यहाँ पे आपका डेप्री हो जाएगा 1,800। डिड यू गेट दिस पॉइंट नाउ? ये उसका दिस वाज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन। इसमें पॉइंट, इस पर एम्फेसिस एसेट्स की कैलकुलेशन का नहीं है। द एंटायर सम फोकसेस ऑन दिस 4 एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू प्रॉफिट्स, लास्ट 3 years प्रॉफिट्स। तो यही इसमें, दिस इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन। गॉट इट? बस तो मैंने क्या किया, फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं कि 3 साल का जो आपकी मैनेजमेंट की कॉस्ट है वो यहाँ पे मैंने माइनस कर दी। एबनॉर्मल लॉस क्यों माइनस किया, गुडविल वो रिफ्लेक्ट नहीं करता तो मैंने उसको क्या किया, एडबैक कर दिया, प्लस कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक आपने ओवर वैल्यू किया तो मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है, क्रेडिट साइड पर जाता है। यू इंक्रीज द क्रेडिट साइड, तो उसको ठिकाने लाने के लिए, मतलब उसको जस्ट टू सेट इट राइट, कितना करना पड़ेगा -2,000। और नेक्स्ट ईयर द सेम क्लोजिंग स्टॉक वुड अपीयर एज द ओपनिंग स्टॉक, तो दैट मींस नेक्स्ट ईयर आपने क्या किया, डेबिट साइड को इन्फ्लेट कर दिया, उसको सेट इट राइट करने के लिए 2,000 मैंने नेक्स्ट ईयर प्लस कर दिया, राइट। और प्लान पर रिपेयर्स किया था, दैट वाज रॉन्गली ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैंने उसको करेक्ट करने के लिए, आपने डेबिट किया तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, करेक्ट करने के लिए, और क्रेडिट करूं मतलब प्लस करो, तो 10,000 मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। एंड नाउ द सेम थिंग इज ट्रीटेड एज अ प्लांट, और जो प्लांट है दैट इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, तो 20% के रेट से आधे साल का डेप्री कितना होगा 1,000, ठीक है। 10,000 इंटू 20% इंटू 6/12, और नेक्स्ट ईयर उसकी रिड्यूस बैलेंस कितनी हो जाएगी, तो 10,000 माइनस 10,000 माइनस डेप्री 1,000, सो नेक्स्ट उसकी वैल्यू कितनी होगी 9,000। 9,000 पर 20% फॉर 1 ईयर, और आपका डेप्री होगा 1,800, ठीक है। बस तो इसमें इतना ही है, और कोई देयर आर नो अदर एडजस्टमेंट्स ऑन द प्रॉफिट, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो चलो मैं इसको यहाँ पे चारों साल के फाइनल प्रॉफिट के फिगर्स निकाल देते हैं। पहले साल है आपके पास इन द फर्स्ट ईयर 1,25,000 माइनस कितना है आपका 2,000 माइनस प्लस 5,000 माइनस 2,000, और कुछ है नहीं इसमें। बस तो पहले साल का प्रॉफिट आता है 1,26,000। This is the profit figure from the first year. Now let us obtain the final figure for the second year. 1,32,000 minus provision की cost 2,000 plus opening stock वाला difference 2,000 plus capital expenditure being added back and minus depre on the capital expenditure. So second year में net profit आता है after the adjustments
1,41,000. बेटा मेरे साथ करना, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग इट विद मी, यू आर सॉल्विंग द सम अलोंग विद मी, देखते मत रहना, सॉल्व करो मेरे साथ. सो 1,53,800, ठीक है, उसमें से 2,000 मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और डेप्री ऑन प्लांट. ऑलराइट, तो यहां पे प्रॉफिट आता है थर्ड ईयर में आता है 1,50,000. These are the profits after all the adjustments. Can you see? So you can also see that profits are constantly rising. You can see that profits are constantly rising. And when the profits are constantly rising, what you have to do? आप जानते हो आपको क्या यूज करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. तो चलो हम यहाँ पे यूज करते हैं. और कौन से 3 साल हैं? साल हैं, कौन से साल हैं? स्टार्टिंग विथ 17-18 और 19-20 पर खत्म होता है. तो 3 साल यहाँ पे लिख देते हैं. 2017-18, that is the first year. फिर second year will be 2018-19 and third year will be 2019-20. These are the 3 years. Correct? चलो इनके प्रॉफिट भी कॉपी कर देते ऊपर से. 1,26,000, 1,26,000, फिर है 1,41,000 और थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर में है 1,50,000. As the profits are constantly increasing, तो हम क्या करेंगे? We will also assign them weights accordingly in the ascending order. तो जो lowest profit है will be assigned the lowest weight and the highest profit will be assigned the highest weight. मल्टीप्लाई कर दे दोनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आएगा 1,26,000, यहाँ पे आएगा 2,82,000 और यहाँ पे आएगा 4,50,000. मल्टीप्लाई करोगे तो 150 into 3, यहाँ पे 141 into 2 and 126 into 1. Let's total up the profits of the 3 years. 1,26,000, 2,82,000 plus 4,50,000. तो आपका जो टोटल वेटेड प्रॉफिट आता है वो है 8,58,000. दिस इज योर TWP, उसको आप ब्रीफली बोल सकते हो TWP, टोटल वेटेड प्रॉफिट. करेक्ट. एंड लास्ट यहाँ पे आएगा टोटल वेट्स कितना? 1 + 2 + 3, सो आपका टोटल वेट्स आएगा 6 और आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट 8,58,000. बस, तो यू फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट बाय डिवाइडिंग टोटल वेटेड प्रॉफिट बाय वेट, टोटल नंबर ऑफ वेट. तो 8,58,000 डिवाइड बाय 6, तो आपका कितना आएगा? वेप वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 1,43,000. 1,43,000. और आपको इसमें से क्या लेस करना है? यू हैव टू डिडक्ट, जैसे एज पर द नोट्स आपको NTP लेस करना है जरूर, नॉन ट्रेडिंग इनकम, टैक्सेशन एंड प्रेफरेंस डिविडेंड. तो चलो वो भी यहां पे प्रोसेस कर देते हैं. वेप यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,43,000. दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट. Just a minute. This is your weighted average profit. चलो पहला लेस करते हैं नॉन ट्रेडिंग इनकम. हाँ, है कोई इसमें नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है कोई इसमें? तो लुक एट द बैलेंस शीट. इसमें कोई भी, एज फार एज आई रिमेंबर, इसमें कोई भी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है. बट जस्ट हैव अ लुक एट द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में टोटल असेट्स में कहीं भी बैलेंस में कोई भी इन्वेस्टमेंट को कोई भी रेफरेंस नहीं है. मतलब ये सब में देयर आर नो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, राइट? सो नॉन ट्रेडिंग इनकम यहाँ पे कोई भी होगी नहीं. सो देयर आर नो नॉन ट्रेडिंग इनकम, देयर आर नो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, तो इसमें कोई भी नॉन ट्रेडिंग इनकम भी होगी नहीं. तो यहाँ पे मैं लेस कर देता हूँ नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स. तो इसमें कोई भी नॉन ट्रेडिंग इनकम भी नहीं होगी. और यहाँ पे पूरे एग्जाम्पल में कहीं भी टैक्सेशन का कोई भी रेफरेंस नहीं है. सो देयर आर नो टैक्सेस ऑल्सो, हाईली इम्प्रोबेबल, पर यहाँ पे ये एग्जाम्पल में कोई भी टैक्स का कोई भी रेफरेंस नहीं है.
तो यहाँ पे एनटीपी में से एन भी नहीं है, टी भी नहीं है, ठीक है, बट देयर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो हम बैलेंस शीट से प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे लेस करेंगे. सो प्रेफरेंस डिविडेंड एट नंबर 3 दैट वी विल हैव टू डिडक्ट. सो प्रेफरेंस डिविडेंड कितनी है आपकी प्रेफरेंस डिविडेंड? गो बैक टू द बैलेंस शीट. ये रहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपया है. एंड व्हाट इज द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड? 10%. सो 2 लाख पर 10%, 2 लाख पर 10% यहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 2 लाख रुपीज और उस पर है 10%. सो 20,000 that will be deducted as preference dividend. Correct? और now we have weighted average profit after all the adjustments कितना आएगा? 1,23,000. ठीक है, आपके पास वैप आ गया आफ्टर ऑल द अप्रोप्रिएशंस, आफ्टर इंक्लूड डिडक्टिंग एनटीपी, जिसमें एनटी नहीं था, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसकी इनकम नहीं है, टैक्सेशन का कोई रेफरेंस नहीं है तो टैक्सेस माइनस नहीं करे, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में है, वहां से मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया. सो आपका वैप आया 1,23,000. एंड फाइनली लेट्स मूव टू द सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट का स्टेज पर आ जाते हैं. आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है? अभी निकाला 1,23,000 minus what is your expected profit that you can get from step number 2. 78,000 is your expected profit. यही माइनस हो जाएगा 78,000. तो आपको कितना मिलेगा? 1,23,000 माइनस 78,000. सो आपका जो सुपर प्रॉफिट है वो आएगा 45,000. करेक्ट. एंड गुडविल इज इक्वल टू, कैसे गुडविल फाइंड करनी है आपको? मल्टीप्लायर में क्या लेना है? तो क्वेश्चन में अगेन वी हैव टू गो बैक टू द क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन में? मल्टीप्लायर में क्या दिया है? ईयर टाइम्स, मुझे याद नहीं है. आपको क्या लेना है? 3 इयर्स. 3 इयर्स परचेज लेनी है ना गुडविल के लिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इयर्स से, और वही हम फॉर्मूला में भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे. सुपर प्रॉफिट इंटू 3 इयर्स, और सुपर प्रॉफिट है आपका ₹45,000 इंटू 3. सो आपकी गुडविल आएगी, योर आंसर, फाइनल आंसर विल बी 45. सो इट विल बी 1,35,000. आपकी जो गुडविल आएगी दैट विल बी 1,35,000. So I hope you are absolutely clear about all that I have discussed so far, including the basic notes related to calculation of goodwill. आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे उसके सारे स्टेप्स के डिटेल नोट्स ये वीडियो में मैंने आपको डिस्प्ले करके दी है. प्लीज स्टडी द नोट्स अटेंटिवली एंड आई प्रॉमिस कि आपका एक भी सम गलत नहीं होगा, कि नोट्स आर सो कॉम्प्रिहेंसिव, और ये क्लैरिटी के साथ जब सॉल्व करोगे तो आई एम श्योर दैट यू विल गेट ऑल द एग्जांपल्स राइट. कोई सम ऐसा नहीं जो आपको ट्रिप करे. ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, एंजॉय, बाय.